آ گیا. چلیے بتائیں اس میں بتائیں ماذا صحیح عن کلمۃ سمورات، سمورات کے بارے میں کون سی بات صحیح؟ نمبر 1 انہا مفردۃ، نمبر 2 انہا جمع مکسر، نمبر 3 جمع مؤنث سالم، نمبر 4 جمع مذکر سالم. تو کون سا آپشن صحیح ہوگا سمورات کے بارے میں؟ مؤنث سالم. جمع مؤنث. واو ماشاء اللہ زبردست. یہ یقولون لا تهلك أسا وتجملي في أي حال في أي محل من الإعراب يقع أسن. أسن جو ہے کس حالت میں ہے؟ وہ منصوب مجرور منصوب ہے. ٹھیک ہے یہ منصوب ہے. اوکے چلیے ٹھیک ہے منصوب ہے. ویری گڈ. منصوب ہے تو کیوں ہوگا یہ؟ مفعول لہو، مفعول لاجلہ، کل من الاثنین مفعول مطلق. بتائیں اسن لماذا نصب اسن؟ نمبر 1 اسن کیوں منصوب ہے؟ نمبر 1 مفعول لہو، نمبر 2 مفعول لاجلہ، نمبر 3 کل من الاثنین، نمبر 4 مفعول مطلق. کون سا صحیح ہوگا؟ مفعول لہو. جی آپشن نمبر 3 صحیح ہوگا. مفعول لہو مفعول لاجلہ دونوں ایک ہی ہے. چلیے یہ بتائیے ما ہوا اسم حبیبت امر القیس؟ امر القیس کے حبیبہ کا نام کیا ہے؟ انیزہ. انیزہ فاطمہ دونوں. اوکے اس میں بتائیں فصلی ثیابی من ثیابک تنسلی. ما معنی ثیاب؟ ثیاب من سے کیا ہے؟ نمبر 1 القماش، ثیاب نمبر کے 2 معنی القد، نمبر 3 الفؤاد، نمبر 4 القبیلہ. کون سا صحیح ہوگا؟ الفؤاد. الفؤاد القلب دونوں سے ہوگا. ثیاب مطلب دل ہے یہاں پہ، کپڑا نہیں، جی. القماش نہیں. اوکے اچھا سوال کے اندر اگر صرف معنی پوچھا جائے ثیاب کا تو دل ہی بتائیں گے، یا مرادی معنی پوچھے تب دل بتائیں گے؟ ورنہ لفظی معنی تو کپڑا ہے اس کا. دیکھیے اگر اس شعر کو لکھ دیا ہے ایگزامنر نے کہ ما معنی جی. ثیاب فی ضوء ھذا البیت، اس شعر کی روشنی میں کیا معنی ہے تو آپ بتائیں گے ثیاب کا معنی ہے دل. ٹھیک ہے. ورنہ اور دوسری جگہ کامن آ جائے کہیں پہ تو وہاں مت بتائیے گا ثیاب مطلب دل. ثیاب مطلب اصل کپڑا ہی ہوتا ہے. بس اس معلقے کے پس منظر میں اگر پوچھ لیا جائے تو آپ بتائیں گے دل. چلیے یہاں جو معنی مراد ہے وہ بتائیں گے. اب بتائیے بہتر ہے. اس بیت میں کس چیز کی وصف نگاری ہے؟ آپشن دے رہا ہوں. ولیل کموج البحر ارخا صدولہ علی بانواع الہموم لیبتلی. تو اس شعر میں کس چیز کی وصف نگاری ہے؟ نمبر 1 طول اللیل، نمبر ہول اللیل یعنی خوف اللیل، نمبر 3 قصر اللیل، نمبر 4 خفت اللیل. کون سا صحیح ہوگا بتائیں؟ نمبر 1 طول اللیل. طول اللیل. ہاں طول اللیل، طول اللیل ہوگا. اور دوسرا جو آپشن تھا ہول اللیل یعنی کہ رات کے ہولناکی یا خوف اللیل وہ بھی ہوگا. ٹھیک ہے بانواع الہموم لیبتلی. اس میں بتائیں فقلت له لما تمطى بصلبه واردف عجازا وناء بكلكلي.
بأي شيء شبہ الشاعر اللیل، شاعر نے لیل کو کس چیز سے تشبیہ دی ہے؟ ٹھیک ہے، نمبر 1 البعیر، نمبر 2 الزجاجہ، نمبر 3 القط، نمبر 4 الکلب. کون سا صحیح ہوگا؟ قلب. نہیں، کلب مطلب کتا، البعیر اونٹ سے تشبیہ دی ہے انہوں نے. سوری سر، بائی سر، سوری ہاں، سوری. ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں. قلت له لما تمل لسلوه وأردفا جزاء. وقد اقتدی والطیر فی صناتها بمنجرد قید الابابد ہیکلی. آپ بتائیں اس میں ما معنی منجرد؟ منجرد کا کیا معنی ہے؟ نمبر 1 الخالی من الشعر، بال سے خالی، ٹھیک ہے. نمبر 2 الحزین، ٹھیک ہے. نمبر 3 الطویل. کون سا صحیح ہوگا بتائیں؟ خالی من الخالی الشعر. من الشعر، بال سے خالی. چلیے اس میں بتائیں قید الابابدی، ما معنی ابابد؟ ابابد کا کیا معنی ہوگا؟ ابابد کا کیا معنی ہوگا؟ نمبر 1 الوحوش، ٹھیک ہے، جنگلی جانور. نمبر 2 الشات. نمبر 3 البقر. کون سا صحیح ہوگا بتائیں؟ الوحوش. الوحوش. اوکے، ٹھیک ہے. چلیے بہت خوب، ماشاء اللہ. آپ لوگ پورے اندر تک چلے جاتے ہیں اور ایسے ہی کریں، اور یہ تو ہو جائے گا. ابھی سے آپ یہ ذہن میں لے کے چلیں کہ ہمیں بی پی ایس سی یہ کرنا ہے، یہ جو کر رہے ہیں تیاری، اور وہ لے کے چلیں گے تو اس سے خود بخود نکل جائے گا. کتنے لوگ آ گئے ہیں؟ 27 لوگ آئے ہیں. کم سے کم آ جاتے 80-90 لوگ بھی تو اچھا ہوتا. کیا کریں، پڑھ لیں یا چھوڑ؟ برکتن تھوڑا سا پڑھنا. اصل غلطی میری ہے اس وجہ سے، لیکن میں سوچ رہا ہوں کہ پڑھ لیں تو تھوڑا سا ہو جائے گا. کل آئیں گے، کل جی کمپلیٹ کر دیں گے. ان برکتن لوگوں تھوڑا کا سا چھوٹ پڑھ لیا جائے جائے. زیادہ لوگوں کا چھوٹ جائے گا. ٹیٹ کا ایگزام ہے 28 کو، اس لیے لوگ شاید ابسینٹ ہیں بہت زیادہ. اچھا، تو آپ لوگ دے جی رہے ہیں ٹیٹ کا ایگزام؟ جی جی میں دے رہا ہوں سر. میں بھی دے رہا ہوں سر. 28 کو ایک کام کرتے ہیں، چونکہ کل ہی آتے ہیں، سمجھ گئے کہ نہیں؟ جب ٹیٹ کا ایگزام ہے تو زیادہ تر 28 لوگ کو آ جائیں تو اچھا ہوتا ہے. ہاں ہاں 28 کو ہے. 28 کو ہے. میں اس کا ویڈیو بنانے والا تھا، میں اسٹیٹ کا، وہ بنگال WBMSC کا، وہ شارٹ میں سارے سلیبس کا 2-3 گھنٹوں میں. میراتھن. ہاں میراتھن میں اپنے حساب سے یوٹیوب پہ بنا کے ڈال دوں گا تاکہ آسانی سے 2-3 گھنٹے میں ایک بنا دیجیے سر. سر وہ بنا دیجیے سر، بنا دیجیے. یہ 9 10 11 12 کا 3 مارچ کو ہے. اچھا نہیں، میں اس کا 9-10 کا کب ہے؟ 9 10 کا 3 مارچ کو ہے. مارچ اچھا کا 3 19 تاریخ. کا 3 مارچ، اور یہ کا 5 سے 8 کا 5 to 8 کا یہ 28 کو ہے سر، سنڈے کو، نیکسٹ سنڈے. اچھا 5 to 8. 28 جنوری. سر 5 to 8 کا بنا دیجیے. 5 نہیں، to 8 کا 5 آپ to کا 8 9 10 ایک ہی سلیبس ہے. تو یہ تو آپ کا پریکھا سر المیتا 28 تاریخ کو ہے نا؟ ہاں 28 ٹھیک سے ہے، پہلے بناتے ہیں. کلاس لے لیجیے. ہاں ارادہ ہے. سر ایک چیز تو یہاں تھوڑا سا بولوں میں. ہاں بولیے بولیے. المفتاح السمین کا میں مطالعہ کر رہا تھا سر. اس میں ابو العلا ماروی کے چیپٹر میں ایک چیز میں نے دیکھا، آپشن کے حساب سے جو ہے آپ کا وہاں 6 سال کی عمر میں جو ہے نابینا ہوئے تھے وہ.
हालांकि अच्छा अहमद हसन सैयाद में है 4 साल की उम्र में, वो थोड़ा सा नहीं मैंने अहमद हसन जैया, आपका नाम क्या है, नाम बताएं। अबरार रजा नाम मेरा सर। अच्छा अच्छा, हाँ किसी का मैसेज आया था, मैं सोचा कि दोबारा मैं देखूंगा फिर मैं कंफर्म करूंगा, मैं देख नहीं सका। रुकिए मैं बता रहा हूँ, 1 मिनट। हो सकता है उसमें, वो मैंने तो क्वेश्चन अहमद हसन जैयाद से बनाया है। मुझको डाउट हुआ, अहमद हसन सैयाद को देखा तो वो 4 साल था वहाँ। हो सकता है, ये देखिए फलमा बलग लेकिन अर्राबिया बड़ा मिन उम्री, शानदार हाँ बनाया, ठीक है, बहुत मेहनत की है, बड़ा हाँ शानदार 4 बनाया। साल। ओके शुक्रिया। हाँ ये 4 साल का है। तो उसमें बात ये है ना, बहुत जल्दी में था वो, बना लिया था, लेकिन चूंकि मैंने उसको पढ़ाया भी है, भी पढ़ाने के बीच मैंने दूसरी उसको किताब सही में कर भी दिया। सर 4 दिया हुआ है। नहीं जी हो 4 जाता है, है कभी ये कभी। लिखा हुआ फलम्मा बलग अर्राबिया मिन उम्रिही उसीबा बिल-जत्री फज़हब बियुस्रा'नैहि व बियद्दत अल-दुन्या फनशअ ज़रीरन ला यारिफ। हाँ ठीक है 4 साल है, उसको सही कर लें तो हो जाता है। ले लेते हैं थोड़ा सा, अब हैं 30 लोग, जिन लोगों का रह गया उनको वीडियो देख लेंगे। जी ठीक है सर। वही सही होगा। एक मिनट मुझे वो खोलने दीजिए PDF। जो कुछ है मुझे उससे खुशी हासिल नहीं होगी। वल्लाहि लौ वदअतहु अला सख्रिन लफलक़हु औ अला शअरिन लहलक़हु। तो इसके बारे में ये सवाल आ सकता है, ये जो कोटेशन है ये किसने कहा था? तो ये हजरत हसन ने कहा था। और ये आगे वाली बात भी बहुत मशहूर है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत हसन से पूछा था कैफ तहजूहुम व अना मिनहुम, कैसे तुम कुरैश के हिजो करोगे जबकि मैं भी तो कुरैशी का एक फर्द हूँ। तो उस वक्त उन्होंने कहा था असुल्लुका मिनहुम कमा तुसल्लु शारतु मिनल अजीन, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिक्र ना करें, मैं आपको उससे ऐसे छांट के निकाल दूंगा जैसा कि गोधे हुए आटे से एक बाल निकाल लिया जाता है। और याद रखें ये वाला बहुत मशहूर बात है, ये वाला कैफ तहजूहुम व अना मिनहुम किसने कहा था? तो आप फौरन लगाएंगे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। फिर ये वाला भी असुल्लुका मिनहुम कमा तुसल्लु शारतु मिनल अजीन, ये किसने कहा था? तो आप बताएंगे हजरत हसन बिन साबित ने कहा था। क्लियर हो रहा है ये बताएं? जी क्लियर है सर। ओके। फिर जो है उसके बाद हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि उजुहुम व मअका रूहुल कुदुस, कि उनके हिजा करो जैसा कि आपके साथ रूहुल कुदुस है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत हसन रज़ियल्लाहु अन्हु से कहा, ठीक है। तो उसके बाद वक़अत कलिमातुहु मिनहुम मौक़िअ अस्सिहामी फ़ी ग़सक़िल लैल, ये वाला भी बहुत ज़्यादा एग्जामिनर की नज़र में रहता है, ये क्वेश्चन आ जाते हैं नेट के पेपर में ये सब। तो जब आ जाते हैं नेट के पेपर में तो हमें भी इसका ध्यान रखना है। वक़अत कलिमातुहु मिनहुम, कि उनकी बातें उन पे ऐसे ही गिरती हैं जिस तरह के तीर गिरती हैं रात की तारीकी में। जैसे रात की तारीकी में तीर किसी पे गिरे अंधाधुंध तो इंसान भाग नहीं सकता है, एकदम तीर से छलनी हो जाएगा। ऐसे ही हजरत हसन रज़ियल्लाहु अन्हु जब कुफार के होते थे, इनकी बातें होती थी, वो भाग नहीं पाते थे कुफार, उनको एकदम इनकी बातें लगती थी बहुत अच्छे से, ये मतलब है। तो ये किसके बारे में ये वस्फ निगारी है, किसके बारे में ये कहा गया है? तो आप फौरन बताएंगे ये हजरत हसन बिन साबित हैं, ठीक है। ओके। और इनकी जो वफात हुई है, वफात कब हुई है? वफात हुई है 54 हिजरी में। लेकिन एक चीज याद रखें कि सन वगैरह के सिलसिले में मैं हसन जैयाद की किताब पे भरोसा नहीं करता हूँ, क्योंकि इसमें बहुत सारी गलतियां भी होती है, जानबूझकर के छोड़ देता हूँ। मतलब किस सन में मरे, इन्होंने जो कुछ लिखा है उस पर भरोसा मत कीजिए, उसको किसी दूसरी किताब से देख लीजिए। इसी वजह से मैं इसको अभी नहीं मान रहा हूँ, क्योंकि अक्सर व बेशतर हजरत ये हसन जैयाद से गलती ही भी है सन लिखने में। हाँ आगे है कि इनकी वफात कितने साल की उम्र में हुई? में 120 साल की उम्र में इनकी वफात हुई थी, ठीक है, 120 साल की उम्र में। और दूसरी बहुत सारे किताबों में है इन्होंने
60 साल जाहिलियत में गुजारा और 60 साल इस्लाम में गुजारा। और आखिर में ये भी है वक़द कुफ़ बसरहु फ़ी अक़ाबि अय्यामिही, ये हज़रत हसन बिन साबित रज़ियल्लाहु अन्हु की जो है बीनाई ख़त्म हो गई थी उनके आखिर ज़माने में। अब इसके बारे में अगर बहुत डीपली जाएं तो एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकता है कि मता कुफ़ बसरहु हसन बिन साबित, हसन बिन साबित की बीनाई कब ख़त्म हो गई थी? तो उसका अलग अलग ऑप्शन होंगे। फ़ी सिग़रिही, ठीक है, इंदमा काना इब्ना 14, जब 14 साल के थे। और फिर एक ऑप्शन उसमें ये भी हो सकता है फ़ी अक़ाबि अय्यामी या फ़ी अवाखिर अय्यामी, कि आखिर दिनों में। तो आप यही बताएंगे कि आखिर दिनों में, यानी कि उनके ज़माने का आखिरी दिन था। हाँ, ये वाला भी बहुत मशहूर है कि हसन बिन साबित रज़ियल्लाहु अन्हु जाहिलियत में शाइर अहलिल मुदुन, यानी कि जो वो थे शहर वाले, उनके शायर थे ज़माने जाहिलियत में। वो कैसे? वो आप देख सकते हैं कि अहलुल मुदुन कौन थे? अहलुल मुदुन थे कि गसासिना और मनाजिरा, ये लोग बादशाह, ये क्या थे? सिटी वाले थे, शहर वाले थे। तो जाहिलियत में ये अहलुल मुदुन के शायर थे, ठीक है। मदीनुन सर आवाज नहीं आ रही है। सर आवाज नहीं आ रही है। सर आवाज नहीं आ रही है। सर आवाज नहीं आ रही। क्या करते हो सर?
वाईफाई अचानक से चली गई थी। आवाज आ रही है अब? जी अब आ रही जी है। सर। असल में वाईफाई अचानक चली गई, इस वजह से प्रॉब्लम हो गया था। चले चले, अगर आवाज का कोई प्रॉब्लम होगा तो बताइएगा। तो ये समझ गए थे ना कि हजरत हसन बिन साबित रजी अल्लाह अन्हु को कहा जाता है कि शायर अहलिल मुदुन, जाहिलियत में ये क्या थे? शायर अहलिल मुदुन थे, यानी कि शहर वालों के शायर थे। ये हो गया था, आप लोगों ने सुना था इसको? बताना। जी सर। ओके ठीक है। और जब बेसत का जमाना आया, बेसत का मतलब जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत मिली, तो उस वक्त इनको कहा ये इसके शायर थे, शायर नबूवत है। और जब इस्लाम का जमाना आया तो इनको कहा गया शायरुल यमानिया। अब यहाँ पे ये अहम पॉइंट है, इसको ध्यान में रखें। और आगे का है कुछ अहम चीजें कि जब जाहिलियत का जमाना था तो इनका जो उसलूब जो था ना, इनका जो लफ्ज इस्तेमाल करते थे, किस्मत है वाले कितने बदकिस्मत हैं कि यहाँ से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिजरत करनी पड़ी। तो बस इन चीजों पे इनका सीधा गर्दिश करता है कि हिजरत करके गए तो कैसे गए और मदीना वालों को क्या फायदा हुआ। और इसमें हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदखानी भी है थोड़ी बहुत। तो ये सारी चीजें हैं इसमें, ठीक है। तो देखें अब शेर है, लक़द ख़ाब क़ौमुन ग़ाब अन्हुम नबिय्युहुम वक़द सुर्रा मन यसरी इलैहि व यक़्तदी। हाँ, लक़द ख़ाब, ख़ाबा मीन से क्या होता है? नाकाम होना। और इस पूरे शेर का सीधा सा मतलब ये समझें कि ये जो पहला वाला शेर है, इसमें यह बयान किया गया है कि मक्का वाले जहां से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके गए हैं, ये बहुत ही नाकाम और नामुराद हैं। कि अंसार लोग यानी कि मदीना वाले खुशकिस्मत हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां हिजरत करके गए। ये दोनों इसमें मिसरे में यह बयान किया गया। अब शेर देखिए, समझ में आएगा। लक़द ख़ाब क़ौमुन ग़ाब अन्हुम नबिय्युहुम, ख़ाबा में से जानते हैं, ख़ाबा में से होता खसीरा, नाकाम होना। कौम, ग़ाबा, ग़ाबा में से होता गायब होना। अन्हुम नबिय्युहुम, नबी जानते। तो वो कौम नाकाम व नामुराद हो गई, वो लोग नाकाम व नामुराद हो गए कि जिनसे उनके नबी गायब हो गए, यानी कि जहां से उनके नबी उनको छोड़। आगे है वक़द सुर्रा मन यसरी इलैहिम व यक़्तदी। सुर्रा में से क्या होता? खुश होना। सुर्रा वो खुश हुआ, सुरिरतु मैं खुश हुआ, वो सुर्रा और खुश हो। मन यसरी इलैहिम, सरा यसरी का मतलब क्या है? रात में, सरा यसरी रात में चलना, लेकिन यहाँ मुतलकन माने कर सकते हैं चलना। इब्तिदाअन का मतलब क्या है? सुबह तड़के चलना, एकदम बिल्कुल सुबह सवेरे चलना। अब पूरा शेर होगा, वक़द सुर्रा, और वो लोग खुश हो गए कि जिनकी तरफ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात में चल कर गए, वो यक़्तदी, और सुबह चल के गए, यानी मतलब जहां आप हिजरत करके गए। बस इतनी सी बातें हैं। आई थिंक ये शेर क्लियर हो गया होगा। तरहल अन कौमिन फद्दलत उकूलहुम व हल्ल अला कौमिन बिनूरिन मुजद्ददी। जो शेर है इसका सीधा सा मतलब यह है कि
हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसके पास से हिजरत करके गए थे? मक्का से। मक्का जो बहुत ज्यादा अक्ल लड़ाते थे। अक्ल किस चीज में लड़ाते थे? अक्लों को ये नबी कैसे नबी हो सकते हैं, ये खाते हैं पीते हैं हमारी तरह, और ऐसे ही वो कहते थे कि ये कोई मौजज़ा क्यों नहीं लाते हैं, यानी अपने अक्लों को तरजीह देते थे। तो यहाँ से आप सल्लम हिजरत करके चले गए। फिर जो है मदीना हिजरत करके गए, रोशनी लेकर आए जहाँ से बिल्कुल इस्लाम का रोशनी पूरे तौर पे फैली और ताकत मिली, और वहाँ से दावत का पूरा आगाज। तो वो पूरी कहानी है इसमें। तरहला में से क्या होता है? तरहला में से वही है इर्तहला, यानी कि सफर करना, कहीं से एक जगह, इंतकला, एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होना। तरहला अन कौमिन, उस कौम से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कूच कर गए, यानी कि चले गए, जुदा हो गए। फज़लत उक़ूलहुम, जिन्होंने अपने अक्लों को तरजीह दी। फज़लत उक़ूलहुम, जिन्होंने अपने अक्लों को तरजीह दी। वहल्ला अला कौमिन, हल्ला में से क्या होता है? जी फदल्लत है। अच्छा उनकी ठीक है, अक्लें ठीक है, सुनिए, इसको ऐसा भी कह सकते हैं। तरहल अन कौमिन फज़ल्लत उक़ूलुहुम। ज़ल्ला यज़ल्लु का मतलब होता है गुमराह होना, ठीक है। ज़ल्ला यज़ल्लु मन से होता है गुमराह होना। तो फज़ल्लत उक़ूलुहुम, तो उनकी अक्लें गुमराह हो गई, ठीक है। तरहल अन कौमिन फज़ल्लत उक़ूलुहुम, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन लोगों से हिजरत करके चले गए और फिर उनकी अक्लें गुमराह हो गईं। वहल्ला अला कौम बिनूरिन मुजद्ददी, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक कौम के पास आए नई रोशनी को लेकर। ये देखिए यहाँ पे जो है ना, ये है फ़ज़ल्लत, फ़ज़ल्ला, ज़ल्ला या ज़ल्लु मतलब होता गुमराह होना। हदाहुम बिही बाद ज़लालती रब्बुहुम व अरशदहुम मन यत्तबिल हक़्क़ यरशुदु। इसमें क्या है? इसमें सीधी सी बात यह है कि इसमें मदीने वालों के बारे में, बल्कि पूरे दोनों शेर में मदीने वालों की तारीफ की है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना गए तो मदीने में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के थ्रू उन लोगों को हिदायत मिली, और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी रहनुमाई की, तो वो लोग राह पा गए। इतनी सी बात है इसमें। आगे देखिए, बिही, बिही बिसब, इसके थ्रू, मतलब होता है रास्ता दिखाना, जलाला गुमराही, रब्बुहुम उनका रब, फहदाहुम का फाइल यह है रब्बुहुम, तो उनके रब ने उनको रास्ता दिखलाया, बिही उनके थ्रू। अब बिही से मतलब कि बिर रसूल, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिया उनके रब ने उनको रास्ता बाद जलालती, गुमराही के बाद, ठीक है। वो अरशदहुम यत्तबिल हक़्क़ यरशुदु। अब ये जो है अरशदहुम का जो फाइल है मन यत्तबिल हक़्क़ है, जो हक की पैरवी करते हैं। कौन? यानी कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन्होंने उनकी रहनुमाई की। अरशद युरशिदु, इरशाद का मतलब है इराअतु तरीक़ सही, इराअतु तरीक़, रास्ता दिखाना, ठीक है। वो अरशदहुम, और उनकी रहनुमाई की वो इंसान जो कि हक की पैरवी करते हैं, यरशुदु, तो वो रास्ता पा गए। क्लियर हुआ ये शेर? बताएं। वहल यस्तवी ज़ुल्लालुन बाद कौमिन तसफ़्फ़हु अमन व हुदातुन यहदून बिमुहतदी। बताएं ये सब शेर क्लियर हुआ? जी जी क्लियर है सर। जी सर। वहल यस्तवी ज़ुल्लालु कौमिन तसफ़्फ़हु अमन व हुदातुन यहतदून बिमुहतदी। अब इसमें एक सवालिया निशान के तौर पर दोनों में कंपैरिजन कर रहे हैं। कौन दोनों में? मक्के वालों में, मदीने वालों में। कहते हैं कि मक्के वालों ने वो एकदम बेवकूफ बन गए, उन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया। तो क्या उनमें इसमें कि मदीने वालों में जिन्होंने इस्लाम कबूल किया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खैर मकदम किया, क्या दोनों बराबर हो सकते हैं? तो हरगिज़ नहीं हो सकते। यह मतलब एक इनकारी अंदाज है इनका।
وحل یستوی، استوا یستوی، استوا مطلب ہوتا ہے برابر ہونا. ضالن کے جمع ہے ضلال، ضلال قوم گمراہ لوگ. اوہو آج کلاس ریکارڈ نہیں ہو رہا، توبہ توبہ استغفر اللہ. ایک منٹ نہیں ریکارڈ ہو رہا ہے. آج بہت سارے لوگ نہیں ہیں، پھر ان کو کیسے ملے گا؟ ریکارڈ ہو رہا ہے، ریکارڈ ہو رہا ہے. آپ لوگوں کو اس میں چل رہا ہے، دکھ رہا ہے نا؟ ہو تو رہا ہے ریکارڈ. جی جی ہو رہا ہے سر. نہیں سر نہیں ہو رہا ہے. کہاں پہ؟ ہو رہا ہے، ریکارڈ ہو رہا ہے. جی ٹھیک ہے، چلتے ہیں. ہاں، وَهَلْ يَسْتَوِي ضُلَّالُ قَوْمٍ تَصَفَّهُ عَمًا وَهُدَاةٌ يَهْتَدُونَ بِمُهْتَدٍ. استوا یستوی، استوان کا مطلب ہوتا ہے برابر ہونا. ضلال قوم گمراہ لوگ. تصفہ، تصفہ تصفہن کا مطلب ہوتا ہے کہ صار صفیحن، بیوقوف بننا، جان بوجھ کر کے بیوقوفی کرنا. ٹھیک ہے، تو کیا امن سے ہوتا ہے اندھے پن کی وجہ سے. برابر ہو سکتے ہیں وہ گمراہ لوگ جو کہ جنہوں نے کہ اندھے پن کی وجہ سے بیوقوفی اختیار کر لیا، بیوقوفی کی. برابر کیا وہ ہو سکتے ہیں اداتن، اور وہ لوگ ہو سکتے ہیں جنہوں نے کہ راستہ اور یہ تدونا، اور ان لوگوں نے ہدایت پایا بمحتدی، ایک اس شخص سے جو کہ ہدایت پائے ہوئے ہیں، جنہوں نے کہ ایک ہدایت یافتہ شخص سے ہدایت پایا. تو اہتدا بھی کا مطلب ہوتا ہے ہدایت پانا. ہاں آگے دیکھیے. لقد نزلت منہ علی اہل یثرب رکاب ہدن حلت علیہم باسعدی. یہاں ایک ورڈ ہے وہ دیکھ لیجئے، رکاب. رکاب میں سے کیا ہوتا ہے؟ رکاب کی جمع آتی ہے رکائب، رکوب. اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ابل مرکوبۃ، وہ اونٹ جس پہ کوئی سوار ہو، جس پہ سواری کی جاتی ہو اس پہ، یعنی کہ وہ اونٹ جو لدا ہوا ہو سوار سے. ٹھیک ہے، اس کو بولتے ہیں رکاب. رکاب کی جماعت رکائب. اب یہاں پہ آپ صحیح سے ترجمہ کریں تو رکاب و ہدن کا سیدھا سا مطلب یہ کر لیں کہ ہدایت کا مطلب اردو میں سمجھنے کے لیے، لیکن اس کا لفظی معنی آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے. اب دیکھیں، لقد نزلت منہ علی اہل یثرب. یثرب کون ہے؟ یثرب مدینہ ہی کا دوسرا نام ہے. تو اہل یثرب من سے ہوتا ہے مدینہ والے. ٹھیک ہے، اہل یثرب من سے کیا؟ مدینہ والے. لقد نزلت منہ علی اہل یثرب رکاب ہدن. رکاب ہدن ہدایت کا قافلہ. تو مدینہ والوں کے پاس ان کی طرف سے ہدایت کا قافلہ اترا، یعنی پہنچا. اور وہ ہدایت کا قافلہ جو ہے حلت علیہم باسعدی، وہ ان کے پاس آیا اسعدی، بہت ہی نیک بخت انسان کو لے کر. تو وہ نیک وقت انسان سے کون مراد ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی یہ پورا قافلہ جو آیا یہ نیک بخت انسان کو لے کر آیا. رکاب کا معنی کیا ہے وہ آپ سمجھ جائیے کہ وہ اونٹ جس پہ کے سوار ہو. تو اونٹ جو آیا وہ آپ پھر سے ترجمہ کر کو دیں. لے سکتے ہیں. ترجمہ ٹھیک ہے. لقد نزلت منہ علی اہل یثرب رکاب ہدن. دیکھیے نزلت کا فاعل یہ ہے رکاب ہدن. ٹھیک ہے، اور اہل یثرب کے پاس ان کی طرف سے ہدایت کا قافلہ اترا، آیا. حلت علیہم باسعد، وہ ہدایت کا قافلہ ان کے پاس آیا لے کر کے باسعدی، بہت ہی بخت انسان کو، بہت ہی بابرکت انسان کو. منہو میں ہو کا مرجع کیا ہے؟
हु का मर्जा जाएगा वही नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ, ठीक है। उधर से जो तस्किरा होता हुआ आ रहा है वह यदकुरुल कौम, नीचे से इधर से तरहला हदाहुम अरशदहुम, ये सब में जो ज़मीर है, बल्कि जी कहें तो मुहतदी जो है ना, मुहतदी, कौम के चूंकि तरफ जाएगा, ज़मीर आगे जो कौम है उसकी तरफ जाएगा शायद। कौम भी कर सकते हैं, लेकिन हाँ कौम भी हो सकता है। कौम से यहाँ मुराद होगा कि कौमु मक्का, ठीक है। जी जी जी। लेकिन यहाँ मुहतदी से भी कर सकते हैं, कोई बात नहीं है। मुहतदी यानी कि जो हिदायत याफ्ता है, हिदायत याफ्ता कौन थे? नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो उन्हीं की तरफ से ना ये काफिला आया था, फिर आगे उन्हीं को जो है तस्किरा भी है, ठीक है। कौम भी हो सकता है, नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है चूंकि ये लगा मुहतदी, तो इस वजह से मैंने मिनहू से मुराद ये मुहतदी जो है वो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिदायत याफ्ता, तो वो माना जाएगा, ठीक है। शेर क्लियर होना चाहिए। बात ये होती है कि शेर के अंदर जो ज़मीर वगैरह होता है ना, उसके लोग अलग अलग तरह से मीनिंग ले सकते हैं, बस ये समझ में आना चाहिए आपको। और ठीक है, समझ में आई ये बातें, आगे चलें। जी जी सर। नबियुन यरा मा ला यरा अन्नासु हौलहु व यतलू किताबल्लाहि फी कुल्लि मशहद। इसमें जो है दरहकीकत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजिज़ा बयान किया गया है, ठीक है। मौजिज़ा ये कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि वही नाजिल होती है तो वो चीज़ें देख लेते हैं जो आम लोग नहीं देख पाते हैं, बस इतनी सी बात है। तो इसमें जो है दरअसल की तारीफ है कि वही उस पर नाजिल होती है, असलम से सर अल्लाह की आवाज किताब नाजिल आवाज थोड़ा सा होती है। प्रॉब्लम हो रहा है, अच्छा ठीक है, सबको फिर म्यूट कर दीजिए। चलिए अब आवाज क्लियर है, जी क्लियर है सर। ठीक है। ओके सर। नबियुन यरा मा ला यरा अन्नासु हौलहु व यतलू किताबल्लाहि फी कुल्लि मशहदी। तो इसमें सीधी सी बात है, आप सल्लम पे जो वही नाजिल होती है, किताब नाजिल होती है, उसकी मदद से राई है। बस वो नबी ऐसे हैं कि यरा, वो देखते हैं वो चीजें, मा ला यरा अन्नासु हौलहु, जो कि लोग नहीं देख पाते हैं अपने इर्द गिर्द। व यतलू किताब, और वो अल्लाह की किताब की तिलावत करते हैं, फी कुल्ली मशहदी, हर जगह, ठीक है। तो इसमें समझ में आया, ये इसमें जो है उसकी तारीफ है, जो अल्लाह की किताब नाजिल होती है उसकी तारीफ है। सर इतने ही अशार हैं? नहीं और भी हैं। अच्छा अशार और भी हैं। वह इन क़ाल फी यौमिन मक़ालत गायबिन, देखिए ये सब जो अशार है ना, ये सब उससे लिए गए हैं, क्या बोलते हैं, नुक़बतुल अदब से। तो नुक़बतुल अदब ही मर्जा है, तो मैं वहीं से लेके पढ़ा रहा हूँ। व इन क़ाल फी यौमिन मक़ालत गायबिन फतस्दीक़ुहु फिल यौमि औ फी ज़ुहल गदी। अब इस शेर की बात करें तो इस शेर में, अब देखिए आवाज के लिए इन मैसेज किसने किया था, एक मिनट, ये आपने इनामुल हक साहब आपने मैसेज किया था। अब आवाज क्लियर आ रही है आपके पास? ठीक है, अगर आपको आवाज आ रही है तो आप वो कर दें, बता दें। इसमें जो है इस चीज का तज़किरा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे चूंकि वही नाजिल होती है तो वो गैब की बातों को जान लेते हैं। मतलब ये कि वो बातें जो आम लोग नहीं जानते हैं, अब एक बात बता दी आपने कि ऐसा होगा और वही के थ्रू मालूम हो गया, वही के जरिए आपको मालूम हो गया, तो फिर उस बात की लोग जो है शुरू में ये करते, ये कैसे हो सकती, लेकिन उसकी तस्दीक जो है कल परसों जा करके हो जाती थी।
तो आप सल्लम पहले जो बयानी कि आप सल्लम का मौजिजा इसमें बयान किया है। व इन क़ाला, अगर आप सल्लम ने कहा है फी यौमिन, किसी दिन, मक़ालत गाइबिन, एक गायब इंसान की बात, मतलब ये कि आप सल्लम ने, आपने एक बात की है, आपने एक कोई बात कही है जो कल होने वाला है, ठीक है, जो कल होने वाला है, एक गायब इंसान जो कुछ कर सकता है, जो कल होने वाला है, उसके बारे में आप ने कोई बात कहा, तो फतस्दीक़हु फिल यौमी, तो तस्दीक होती उसी दिन, और फी ज़ुहाल गदी, या दूसरे दिन सुबह, ठीक है। बताएं ये शेर क्लियर हुआ? जी लियहनी अबा बकरिन सआदतु जद्दिही बिसुहबतिही मन युसइदिल्लाहु यसअदी। अब इस शेर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हिजरत करके कौन गए थे? हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु गए थे, जिसको बोलते हैं गारे यार, हाँ, या यारे गार, गार के दोस्त, यारे गार, या क्या बोलते हैं उर्दू में, हाँ, कि गार जी के यारे दोस्त गार। आप सल्लम के साथ, हाँ, आप सल्लम के साथ हिजरत करके हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु गए थे मदीना। तो अब इसमें जो है हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु की शान में ये शेर है कि अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु कितने खुशकिस्मत हैं, वसल्लम की सोहबत में गए, साथ गए, तो अल्लाह जिसके साथ अच्छा करना चाहते के साथ उनको ये मौका मिलता है। इतनी सी बात है शेर में। अब आगे लियहना, दुआ है इसमें, लियहनी अबा बकरिन सआदतु जद्दी। देखिए यहाँ पे जो जद जो है ना, जद, एक जद का मतलब तो होता है दादा, लेकिन यहाँ जद का माना है वो नसी, ठीक है, ताले, ताले बोलते हैं, सोहबत ताले तोरा ताले कुना, ताले नसीब, तो सादत नसीब। मतलब होता है खुशकिस्मती, खुशकिस्मती, खुश नसीबी। तो लियहना अबा बकरिन, यहाँ ना दुआ है कि अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु को मुबारकबादी हो उनकी खुशकिस्मती का, बिसुहबती ही, कि उनकी खुशकिस्मती का कि वो आप सल्लम के साथ में गए। सहीबा यसहबु सोहबतन का मतलब क्या होता है? किसी का साथ जाना, तो सोहबती। तो हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु को खुशकिस्मती हो कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ गए, ये उनको खुश नसीबी हासिल हुई। तो अब आगे है मन युसइदिल्लाह यसदु, जिसको खुश नसीब करता है तो वो खुश नसीब हो जाता है। क्लियर हुआ ये शेर? जी तो अब ये जो शेर है, ठीक है, इसमें क्वेश्चन कैसे आएंगे? सीधी सी चीज है, इसमें क्वेश्चन ये आएंगे, ये सारे अशार में से कोई भी शेर उठा के दे सकते हैं। एक चीज, जैसे इसका ये वाला शेर जरूर देख लीजिएगा, लक़द ख़ाब क़ौमुन ग़ाब अन्हुम नबिय्युहुम व क़द सुर्रा मन यसरी इलैहिम व यक़्तदी। ये पहला उठा के इसमें दे सकते हैं, किसने कहा ये शेर, ठीक है, और किसकी शान में कहा। तो आपको पता है ये हजरत हस्सान बिन साबित ने कहा है, आप सल्लम जब कहा था। अब ये चीजें आपके ज़हन में है तो पूरा शेर आप पढ़ जाइए, तो किसी तरह का भी सवाल आएगा तो आप ये कर लेंगे। तो आज एक ही शेर रखते हैं, कल दो पढ़ लेंगे, कल कसीदा बुर्दा पढ़ लेंगे और खंसा रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में पढ़ लेंगे, ठीक है सर, और ग्रुप में बोल देते हैं। हाँ बोलिए। कि कल ना होकर के एतवार को और क्लास होता तो अच्छा होता सर। में पहले से टाइम टेबल बना हुआ था, ठीक है, 3 जी दिन, तो उसी टाइम टेबल के हिसाब से लोग मैनेज करते हैं। चूंकि इस मरहले में तो स्टूडेंट नहीं है ना, सब तो अपने अपने काम में लगे हुए हैं, कोई पढ़ा रहे हैं, कोई कुछ कर रहे हैं, तो ये देख करके सब ने मैनेज किया कि हाँ 3 दिन हम रहेंगे। तो मेरी जो नहीं बीच में मतलब, मैं सफर करने लगा था, तो ये मसला है, तो उसके लिए सबसे पूछना पड़ेगा। क्यों, आपको कोई प्रॉब्लम है कल? जी उसके लिए थोड़ा सा ये था। अच्छा कोई बात नहीं, अगर सब रिकॉर्डिंग देख लेंगे हाँ हो तो जाएगा। टाइम टेबल से मैच हो जाएगा। 28 तारीख को टेट एग्जाम है
हाँ उसके बाद मंडे से कंटिन्यू कर लीजिए। हाँ मंडे से वैसे अगर ज्यादातर लोग इसमें हैं बंगाल के देने वाले तो कोई बात नहीं, 28 तारीख तक छोड़ ही देते हैं, उसके बाद कंटिन्यू कर लेंगे। जी जी उसके बाद जी कंटिन्यू कर जी जी लेंगे। बिल्कुल, वो अच्छा होगा। मंडे से कंटिन्यू करें अच्छा सर। एक काम करते हैं, एक वोटिंग कर लेते हैं उसमें, लोगों को वरना बता देते हैं कि 28 तक रहने देते हैं, 28 के बाद से कंटिन्यू कर लेते हैं, ठीक है। जी कंटिन्यू कर लेंगे सर। जी आपको जी 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 सर। कितने देने वाले एग्जाम है ज्यादातर लोग बंगाल के? जी ज्यादातर बंगाल के ही हैं सर। चलिए फिर रहने देते हैं, मैं मैसेज कर देता हूँ कि 28 के बाद से जस्ट कंटिन्यू करेंगे मंडे से। इंशाल्लाह जी, जी। इंशाल्लाह सर। ठीक बारक ठीक है, अल्लाह। आ भी नहीं रहे तो फायदा नहीं होता इस तरह से ना। जज़ाकुमुल्लाह। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाहुम्मा आमीन। और कोई बात नहीं है, आगे हम कर लेंगे, हफ्ते में 5 दिन पढ़ेंगे, 20-25 क्लास हो जाएगा, सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, वो मेरी जिम्मा है। जी जी चलिए इंशाल्लाह हो बढ़िया है, जाएगा। चलिए ठीक है, ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। जी जी।